N-type semiconductors, when a small amount of pentavalent impurity is added to pure semiconductor, it is known as N-type semiconductor. जो हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं ना, वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं, और जिन सेमीकंडक्टर्स में हम प्योर इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं. तो जो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स हमारे पास तब बनते हैं जब हम प्योर सेमीकंडक्टर्स में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, तो हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं. जो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज हम ऐड करते हैं फॉर जनरेटिंग एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, दैट इज नोन एज एंटीमनी एंड arsenic. The addition of pentavalent impurity provide a large number of free electrons in the semiconductor crystal. Typical example of pentavalent impurities are arsenic and antimony. Such impurities which produce n-type semiconductor are known as donor impurities. ये क्योंकि प्रोवाइड करती हैं n-type semiconductors को, इसके लिए हम इसके लिए इनको डोनर impurities कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रही होती हैं. Because they donate or provide free electron to a semiconductor crystal. To explain the formation of n-type semiconductor, consider a pure germanium. हम लोग जो है एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास n-type semiconductor की फॉर्मेशन किस तरह होती है. उसके लिए हम एक प्योर जर्मीनियम क्रिस्टल लेते हैं. वी नो दैट जर्मीनियम एटम हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. जर्मीनियम जो एटम होता है ना, उसके इर्द गिर्द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. When a small amount of pentavalent impurity like arsenic is added to germanium crystal, a large number of free electron become available in the crystal. जब हम small amount of pentavalent impurities को arsenic में ऐड करेंगे, large number of free electron available होंगे. The reason is simple. Arsenic pentavalent atom has 5 valence electron, and arsenic antimony fit in the germanium crystal in such a way that its 4 valence electron form covalent bond with 4 germanium atom. The 5th valence electron of arsenic atom find no place in covalent bond and is thus free. Therefore, for each arsenic atom added, 1 free electron will be available in the germanium crystal. Though atom provide 1 free electron, yet an extremely small amount of arsenic impurity provide enough atom to supply million of free electron. उन्होंने यहाँ पर ये बताया कि जो arsenic होती है एक पेंटावैलेंट होती है, ठीक है. इट्स एटम हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके एटम के इर्द गिर्द 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. arsenic एटम फिट होते हैं जर्मीनियम क्रिस्टल में इन सच अ वे दैट इट्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद जर्मीनियम एटम. फर्स्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ arsenic एटम फाइंड नो प्लेस इन द कोवेलेंट बॉन्ड एंड इज thus free. Therefore, of each arsenic atom added 1 free electron available. Instead, though each arsenic atom provide 1 free electron, yet extremely small amount of arsenic impurity provide enough atom to supply million of free electrons. इन फिगर 5.12, अगर हम 5.12 फिगर को देखें तो एक हमारे पास सबसे ऊपर जो हमारे पास बैंड है उसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं, और नीचे जो हमारे पास बैंड है उसको वैलेंस बैंड बोलते हैं, और ये बैंड एनर्जी गैप. अच्छा, ये एनर्जी का गैप है जिसको फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं. Show the energy band description of n-type semiconductor. The addition of pentavalent impurity has produce a large number of conduction band electron. कि जब हम pentavalent impurity को ऐड करेंगे तो large number of free electrons produce होंगे. The 4 valence electron on pentavalent atom form covalent bond with 4 neighboring germanium atom. The 5th left over valence electron of the pentavalent atom cannot be accommodated in the valence band and travel through the conduction band. उन्होंने ये यहाँ पर बताया है कि जो 4 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे ना पेंटावैलेंट एटम के, वो कोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे 4 नेबरिंग जर्मीनियम एटम से. जो 5th लेफ्ट ओवर होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो 5th वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा पेंटावैलेंट एटम का, वो अकोमोडेट नहीं हो सकेगा वैलेंस बैंड में. जब वो वैलेंस बैंड में अकोमोडेट नहीं हो सकेगा तो वो कंडक्शन बैंड की तरफ ट्रेवल करेगा. द फॉलोइंग पॉइंट में बी नोटेड केयरफुली. मैनी न्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द एडिशन ऑफ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी. बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं जब हम पेंटावैलेंट impurity को ऐड करते हैं. Thermal energy of room temperature still generate a few whole electron pair. However, the number of the free electron provided by the pentavalent impurity far exceed the number of the whole. जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना प्रोवाइड करता है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, वो एक्सीड कर देते हैं नंबर ऑफ होल्स के साथ. इट इज ड्यू टू द प्रोडोमिनेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर होल्स दैट इट इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर. एन स्टैंड फॉर नेगेटिव.
N-type conductivity, the current conduction in an N-type semiconductor is predominantly by free electrons, negative charges, and is called N-type or electron type conductivity. To understand N-type conductivity, when potential difference is applied across N-type semiconductor, the free electrons in the crystal will be directed toward the positive terminal, constitute an electric current. As the current flow through the crystal is by free electron, which are the carrier negative charge, therefore this type of conductivity is called the negative or N-type conductivity. It may be noted that conduction is just an ordinary metals like copper. अब हमने यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि एन टाइप कंडक्टिविटी होती कैसे। जो करंट की कंडक्शन होती है ना एन टाइप सेमीकंडक्टर में, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, नेगेटिव चार्जेस की वजह से होती है, उसको एन टाइप और इलेक्ट्रॉन टाइप कंडक्टिविटी कहते हैं। अब हमने अंडरस्टैंड करना है कि एन टाइप कंडक्टिविटी को इन फिगर 5.13 फिगर में देखें तो 5.13 फिगर में हमारे पास क्या है, ये यहाँ पर जो है ना ये कंडक्टिविटी बताई हुई है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये पॉजिटिव चार्जेस है, इम्प्योरिटी एटम, पॉजिटिव चार्जेस इम्प्योरिटी एटम है, और ये जो है हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। और यहाँ पे हमने एक बैटरी का कनेक्शन लगाया है, पॉजिटिव को कनेक्ट किया है लेफ्ट साइड से सॉरी, और जो नेगेटिव है ना उसको राइट साइड से कनेक्ट किया। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एन टाइप कंडक्टिविटी कैसे हो रही है। जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया अक्रॉस एन टाइप सेमीकंडक्टर में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स डोनेट बाय द इम्प्योरिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन जो हमने पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड की थी उसकी वजह से जो डोनेट हुए थे हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द क्रिस्टल में विल डायरेक्टेड टुवर्ड पॉजिटिव, फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। जैसा कि इस फिगर में हमारे पास बताया हुआ है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम देखें ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, एरो से हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स शो किए हुए हैं, तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टुवर्ड द पॉजिटिव एंड जा रहे हैं, बैटरी के अट्रैक्ट हो रहे हैं। एज अ current flow through the crystal is by free electrons which are the carrier of the negative charge. Therefore this type of conductivity is called negative or n-type conductivity. जब करंट फ्लो करेगा थ्रू द क्रिस्टल में से फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, विच आर द कैरियर ऑफ नेगेटिव चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज कैरियर है, दिस टाइप ऑफ कंडक्टिविटी इज कॉल्ड नेगेटिव और n-type कंडक्टिविटी। इसको नेगेटिव और n-type से इंडिकेट करने का, इट मे बी नोटेड दैट कंडक्शन इज जस्ट एन ऑर्डिनरी मेटल लाइक कॉपर। कंडक्शन जो होगी ना वो जस्ट लाइक ऑर्डिनरी मेटल्स होगी जैसा कि कॉपर में होती है। अब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या करेंगे। When a small amount of trivalent impurity is added to pure semiconductor, जब हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज को ऐड करेंगे टू प्योर सेमीकंडक्टर्स में, इट इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर, उसको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर्स कहेंगे। जब हमने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी का ऐड की थी तो हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर्स जनरेट हुए थे। अब हमने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज को ऐड करेंगे तो हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर्स जनरेट होंगे। द एडिशन ऑफ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी प्रोवाइड अ लार्ज नंबर ऑफ बफर जोन। जब हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज को ऐड कर रहे थे तो हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे थे। अब हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे तो लार्ज नंबर ऑफ होल्स प्रोड्यूस होंगे सेमीकंडक्टर। टाइपिकल एग्जांपल ऑफ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज आर गैलियम, इंडियम। Such impurities which produce p-type semiconductor are known as acceptor impurities. वो impurities जो हमारे पास produce करेंगी p-type semiconductor, उसको हम क्या कहेंगे, acceptor impurity, because holes created can accept the electron. जो holes create हुए ना वो accept करेंगे electron को. To explain the formation of p-type semiconductor, consider a pure germanium crystal. When a small amount of trivalent impurity like gallium is added to germanium crystal, there exists a large number of holes in the crystal. The reason is simple. Gallium is trivalent impurity. Gallium is a trivalent. When a small amount of trivalent like germanium is added to pure germanium crystal, large number of holes. द रीजन है सिंपल, गैलियम क्योंकि हमारे पास ट्राइवेलेंट है, उसके जो एटम है ना हैज 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ईच एटम ऑफ गैलियम फिट इनटू द जर्मेनियम। हर गैलियम का जो एटम है ना वो जर्मेनियम के साथ फिट होता है, बट नाउ ओनली 3 कोवेलेंट बॉन्ड कैन बी फॉर्म। हर जर्मेनियम के इर्द गिर्द कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4। वो जर्मेनियम के जो हैं वो बॉन्डिंग बनाएंगे ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज के साथ, जैसा कि हमने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी इसमें क्या ऐड की है, गैलियम।